करना है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। पहले तो आप इस शब्द को समझते हैं। एनालिसिस तुम जानते हो किसी चीज़ की घोख पड़ताल करनी, जांचना, उसको एनालाइज करना। डायमेंशनस ये की है? असी पढ़िया है कि साडे कोले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ने। किहड़ियां-किहड़ियां ने? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हैगियां सी साडे कोले मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, करंट ते क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ने साडे कोले। बाकी सारिया क्वांटिटीज नूं असीं इन्हां 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म च रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिवें आपां उहनूं कहने आ डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जिवें तुहानूं दस्सिया सी एरिया लेंथ इनटू लेंथ करके आ सकता है, ते डेंसिटी मास नूं लेंथ क्यूब नाल यानी कि वॉल्यूम नाल डिवाइड करके आ सकती है। स्पीड डिस्टेंस यानी कि लेंथ, डिस्टेंस भी लेंथ है, लेंथ नूं टाइम नाल डिवाइड करके आ सकती है। सो इस तरीके नाल इन्हां को असीं बाकी दीयां सारियां फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। सो इन्हां क्वांटिटीज नूं, ये जिहड़ियां फिजिकल क्वांटिटीज ने, these are known as the dimensions of our physical world। ये साडा जिहड़ा फिजिकल वर्ल्ड है जिस च असीं मेजरमेंट्स करते हैं वेरीअस क्वांटिटीज दीयां, ये 7 डायमेंशनस ने उस वर्ल्ड दीयां जिस च बाकी नूं रिप्रेजेंट किया जा सकदा। इस च मास नूं असीं ये जिहड़ियां डायमेंशनस ने, जदों असीं किसी क्वांटिटी दीयां डायमेंशनस लिखदे हां तां उहनां नूं स्क्वायर ब्रैकेट च लिखदे हां। जिवें मास वास्ते डायमेंशन जिहड़ी है m है, लेंथ वास्ते कैपिटल L है, इत्थे कैपिटल M है, कैपिटल L। टाइम वास्ते कैपिटल T है, टेम्परेचर वास्ते कैपिटल K, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वास्ते इस तरीके नाल CD, करंट वास्ते A, मैटर वास्ते MOL। तो स्क्वायर ब्रैकेट दे विच लिखना है इन्हां नूं। ये की ने 7 डायमेंशनस ने साडे फिजिकल वर्ल्ड दी। हुण कोई भी क्वांटिटी असीं इन्हां दी फॉर्म च लिखनी होवे, जिवें आपां लिखीए स्पीड। सो छोटे तो शुरू करते हैं। एरिया, एरिया की है साडे कोले लेंथ इनटू लेंथ। डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन की है L, दूसरी लेंथ की भी L। तो ये डायमेंशंस लिखती हैं असी की करना है, एरिया दी डायमेंशंस लिखनी है। एरिया की डायमेंशन सो ये की बन गया L स्क्वायर हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਐਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਲਜਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਪਾਵਰਸ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ L2। ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਅਰਲੀ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਇਆ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਸ ਲੈਂਥ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ L2 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 L2 T ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ T ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ M L T ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਨਾ M ਦੀਆਂ L ਦੀਆਂ ਤੇ T ਦੀਆਂ, these are the dimensions of the derived quantity। ठीक, ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਏਰੀਆ ਸੀ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ L ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਮਾਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ M 0 ਤੇ T 0 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, dimensions of area in mass। ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ M L ਤੇ T ਦੀ ਪਾਵਰ, ਕਿ ਉਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ M L ਤੇ T ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ 0 0 ਹੀ ਆਉਗੀ ਕਿਉਂਕਿ K C D A ਤੇ ਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ L ਹੈ। ਸੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 0। ਮਾਸ are 0। dimensions of area in length कितनी है? 2, क्योंकि L की पावर कितनी है? 2। the dimensions of area in time वो कितनी है? वो भी 0। सो इस तरह ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ dimensions। सो ਹੁਣ कोई भी क्वांटिटी ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ है ना, ਆਪਾਂ स्पीड लिखते हैं, उस तो बाद ਆਪਾਂ डिफाइन करांगे डायमेंशंस की ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। स्पीड ਦੀ एग्जांपल ले लेते हैं। स्पीड ਹੁੰਦੀ है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस लेंथ है, सो ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? L ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। T टाइम है, ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ T। डिस्टेंस ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਥ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? L। ਦੇਖੋ डिस्टेंस ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਂਥ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ T। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜੂਗੀ M ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, M 0 L 1 T नीचे है ना, तो ऊपर लिखेंगे -1 वाले T -1। ये याद रखो स्क्वायर ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। सो इथों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ dimensions of speed in mass। मास कितनी है? डायमेंशंस 0, कोई नहीं है। दूसरा लेंथ दे विच कितनी है? 1। ते टाइम दे विच कितनी है? -1। सो इस तरह ਅਸੀਂ डायमेंशंस ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। डायमेंशंस ਕੀ ਨੇ? these are the powers of the fundamental quantities to which they are raised to represent a physical quantity। so ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। so what are dimensions? These are the powers to which the fundamental
quantities are based to represent a physical quantity. Physical quantity केड़ी ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਰਾਈਵਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ l ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਈ ਸੀ ਹੁਣ ਸਪੀਡ ਦੇਖੀ l ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆਈ t ਦੀ ਪਾਵਰ -1 ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸੋ So what is dimensional formula? So it involves the fundamental quantities with powers to represent a physical quantity. जिवें आपने देखिया स्पीड एस नाल जी लिखी है आप स्पीड नूं स्पीड का डायमेंशन फार्मूला की है यही है ना ते एरिया का डायमेंशन फार्मूला जे आप देखिए आपने कीता सी यही इस तरह तुसीं होर चीज़ां दे डायमेंशन फार्मूले जिहड़े ने वो लिख सकते हो सो डायमेंशन फार्मूला की है ये ऐसा फॉर्मूला है जिस च फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विद देयर पावर्स वो इकट्ठियां होंदियां ने एक फिजिकल क्वांटिटी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करने वास्ते उस तो नेक्स्ट है साडे कोल डायमेंशनल इक्वेशन इक्वेशन का मतलब है कि ਉਹਦੇ लेफ्ट ਤੇ राइट साइड ਤੇ दो चीਜ਼ਾं ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ लेफ्ट साइड ਤੇ फिजिकल क्वांटिटी राइट साइड ਤੇ ਉਹਦਾ डायमेंशनल फार्मूला डायमेंशनल इक्वेशन वैसे मैं इतने लिख भी दी सी जिवें मैं इधरले पासे लिखा सी स्पीड इक्वल पार्ट का फार्मूला सो दैट वाज द डायमेंशनल इक्वेशन जेड़ा इधर सी ओदा फार्मूला सी सो डायमेंशनल इक्वेशन इट इज द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity to its dimensional formula. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ एग्जांपल वो भी लेनी है ਆਪਾਂ इधरले पासे मैं लिख दूंगा एरिया तो की होएगा एरिया डायमेंशंस की है m0 l2 t0 या इधरले पासे स्पीड m0 l t - 1 हो
और तुसी लिख सकते हो डेंसिटी ml माइनस 3p0। सो बहुत सारे फॉर्मूले ने जेडे आप लिख सकते। सो दीज आर डायमेंशनल इक्वेशंस, इधर क्वांटिटी इधर का फार्मूला, इधर क्वांटिटी इधर का फार्मूला। ये ऊपर पावर्स की होंगी ने डायमेंशंस m दियां एरिया दियां m ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਏਰੀਆ ਦੀਆਂ l ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ 2, t ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਹੈ। डायमेंशन फार्मूला बनाने तो पहला तुहानू उस क्वांटिटी का रिलेशन पता होना चाहिए है फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाल। जिवें स्पीड का आपां नूं पता सी कि की हुंदी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि उस चीज का फार्मूला होना चाहिए। एरिया सीगा लेंथ इनटू लेंथ, तो आपां नूं पता होना चाहिए कि वो चीज फंडामेंटल क्वांटिटीज नाल लिंक किवें हुई है, फिर ही आपां उहदा डायमेंशन फार्मूला बना सकते हैं। सो कुछ क्वांटिटीज देख रहे हैं जिन्हों के डायमेंशन फॉर्मूले बनाने ने आप। सो तुहाडी बुक दे विच बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले दिते हुए ने उन्होंने, ते ਇਹਦੇ ਚੋਂ मैं कुछ ਜਿਹੜੇ इंपॉर्टेंट ने वो ਤੁਹਾਨੂੰ करवा देना गा, बाकी ਤੁਸੀਂ खुद ट्राई करके देखने ने बहुत ईजी ने। जिस तरह ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ पहला फार्मूला एरिया का मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਤਾ, डायमेंशन फार्मूला उसका वॉल्यूम देख लेंगे हाँ। इथे ਆਪਾਂ लिख लिए फिजिकल क्वांटिटी, इथे उसका रिलेशन फिर डायमेंशनल फॉर्मूला। ते नाल एसआई यूनिट्स भी आप दस देंगे। सो इस तरीके नाल आप क्वांटिटीज लिखते हैं। सो पहली फिजिकल क्वांटिटी चलो आप ले लेंगे हैं कि वो वॉल्यूम है। सपोज द क्वांटिटी इज वॉल्यूम, सिंपल तो शुरू करते हैं। वॉल्यूम की होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ ब्रेड्थ ते हाइट की ने तिन्ने ही लेंथ्स ही ने ना बेसिकली है तो एल ही ने। तो इसे भी आएगा L इंटू एल इंटू एल, तो एक ही आ गया L क्यूब। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला की बन गया L क्यूब। ते एसआई यूनिट्स की हो गए मीटर क्यूब, क्योंकि लेंथ की यूनिट की होंगे ना मीटर। सो मीटर क्यूब यानी कि क्यूबिक मीटर। दूसरा और क्वांटिटी आप ले सकते हैं वो है साडे कोले मास पर यूनिट लेंथ, इन्होंने ली हुई है। सो चलो यही ले लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। तो फॉर्मूला ये क्लियर है तो कि होगा मास m डिवाइडेड बाय लेंथ। सो ऊपर m आएगा, हेठा l है, ये बन जाएगा m माइनस l। t इत्थे है नहीं तो t नूं तुसीं 0 भी लिख सकते हो। तुसीं वो क्वांटिटी नूं छड्ड भी सकते हो क्योंकि पावर ही नहीं है कोई, 0 पावर है। सो ये बन गया m l माइनस 1। सो ये डायमेंशन फॉर्मूला बन गया। और अपने को क्वांटिटी है डेंसिटी
डेंसिटी को ਅਸੀਂ रो ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। सो डेंसिटी ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ਤੇ वॉल्यूम ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ मास लेंथ क्यूब। वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ लेंथ ब्रेड्थ ਤੇ हाइट यानी कि तीन लेंथ्स ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मल्टीप्लिकेशन या लेंथ क्यूब। रे ही यही बन गया ऊपर मास थले वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायरेक्शन फार्मूला की सी एल क्यूब। तो ये साडे को आ गया एम एल माइनस 3। जे टी लिखनी है नाल तो टी 0 और इस अगे आप देखते हैं अगला फार्मूला है साडे कोले वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड का तो मैं दस ही दिता है। तो स्पीड की होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की होता है लेंथ, टाइम टी का डायमेंशन फार्मूला डिस्टेंस का यानी कि लेंथ का ते टाइम का। ये की आ गया एल टी माइनस 1। चलो इधर भी आप लिख लिए रह गया मास पर यूनिट लेंथ यानी कि मास दे की ने मीटर किलोग्राम ते लेंथ दे मीटर। तो आ गया किलोग्राम पर मीटर। इधर मास दे किलोग्राम, इधर की है मीटर माइनस पावर 3 यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर इतने मीटर टाइम दे सेकंड फिर आ जाएंगे मीटर पर सेकंड। सो इसके मीटर पर सेकंड। सो इस तरह ये यूनिट बन गए तो डायमेंशन फार्मूले बन गए। सो सानू पता नहीं होना चाहिएगा फार्मूला पता होना चाहिए उस क्वांटिटी का कि वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नाल किवें लिंक करती है। और भी और क्वांटिटीज भी आप लिख सकते हैं। ओके सो अगली क्वांटिटी आप देखते हैं वो है एक्सेलरेशन। सो मैं तुहानू मेन क्वांटिटीज ने जिहड़ियां लिखवा रहा हां जिहड़ियां आपां बहुत बार यूज करते हैं चैप्टर्स दे विच। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन हुंदी है साडे कोले वेलोसिटी या स्पीड कह लीए। फिलहाल वेलोसिटी का कंसेप्ट तो आपको नहीं पता। स्पीड और किसी पढ़े है ना 9th ਦੇ ਵਿੱਚ 9th पढ़े। सो स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ l p - 1 नीचे टाइम। तो हम देखो ਤੁਹਾਨੂੰ एक चीज का पता लग ही होगी कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ नहीं है कि एक ਦਾ ही डायमेंशन फार्मूला पता होना चाहिए। बाकियां दे पिछलियां दे भी ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखने पैणगे ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ही अगले ਵਧਣਗੇ। सो ये बन जाएगा l t - 1 है आ भी ऊपर जाके -1 बनेगा तो -2 ते डायमेंशंस की बन गया था SI यूनिट्स की बन गई ਇਹਦੇ मीटर ਇਹਦੇ सेकंड ते सेकंड की पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस तो अगे साडे कोल है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी ऐसी स्पीड जिसकी डायरेक्शन है तो मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फार्मूला m वेलोसिटी का स्पीड वाला ही होता है
वेलोसिटी ते स्पीड सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है इन्हां दा। सो देखो ये कितनी आ गई हम एम एल टी माइनस 1 ते फिर वो साडे कोल आ सकता है फोर्स। फोर्स होंगी है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डिफरेंशियल फार्मूला तो m होता है, एक्सेलरेशन का आ सीगा इथे ये की सी lt माइनस 2। mlt माइनस 2 ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा, सो इसको पक्का याद कर लेना है। फोर्स, एक्सेलरेशन ते स्पीड, ठीक है, नाल दी नाल मैं दसी जाऊंगे बहुत बार यूज होंगे, सो इन्हां नूं तुसीं पक्का याद कर लेना है। अगला साडे कोले फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डिवीजन फॉर्मूला आ देखो लिखा है एरिया यानी कि लेंथ स्क्वायर। एरिया का डिवीजन फॉर्मूला एल स्क्वायर। तो ये बन गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ये एल ऊपर जाके -1 होगा ना, इतने 1 हैगी है पावर, तो 1 दे विचों -2 करांगे -1। सो ये उदा ही हुण इहदे यूनिट्स भी लिख लेने आपां नाल। आ देखो लीनियर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इहदे किलोग्राम इहदे मीटर इहदे पर सेकंड। इसदे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो है ही नहीं, पर फोर्स का एक सिंगल यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। सो सिंगल यूनिट इसका की है, ऐसा यूनिट की है न्यूटन। इस तरह ही प्रेशर, प्रेशर के भी यूनिट हैगे ने केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर प्रेशर का भी यूनिट होता है पास्कल, उसको पीए नाम लिखते हैं। पास्कल प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। सो उस तो अगे देखते हैं, दो होर यूनिट्स देख लेते हैं, बाकी तुसीं खुद ट्राई करियो नाल। कई बार इदा भी होंगे कि फॉर्मूला सेम आ जाता है क्वांटिटीज का, बट वो क्वांटिटीज अलग होंगे। सो जरूरी नहीं है जिन्हों का फॉर्मूला सेम है वो क्वांटिटी भी सेम हो। जिवें हुण आपां देखदा एग्जांपल, इस तरह आपां गल करिए वर्क, वर्क डन या वर्क सिंपली वर्क होता है कि तुसीं पढ़िया 9th क्लास दे विच फोर्स इनटू डिस्टेंस। सो फोर्स का डिवीजन फॉर्मूला याद रखना होगा ml t माइनस 2 ते डिस्टेंस का l, तो फिर t बन गया है ml2 t माइनस 2। यूनिट्स की होंगे ने आप तुसीं इसको बनाओगे SI, बट इहदा एक ऐसा यूनिट होता है जूल, जिसको ਅਸੀਂ J ਨਾਲ डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट की होता है जूल। अगली क्वांटिटी वो है टॉर्क। सो आ भी पक्का ही याद रखना है,
वर्क होवे या एनर्जी होवे, कोई भी टाइप की एनर्जी होवे, हीट होवे, वर्क होवे, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ml2t-2। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਟਾਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫੋਰਸ, ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਰਕ ਅਪਲਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਦੇ। So force into perpendicular distance, एक आगे जो होता है perpendicular distance दोनों forces ਦੇ ਵਿੱਚ, या कह लो भी from the point of action ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ force ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। so ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ force है तो ये भी distance ही चाहे perpendicular है, तो ये भी l ही होगा। सेम फॉर्मूला। सो टॉर्क के ਜਿਹੜੇ यूनिट ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਇਥੋਂ ਦਾ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ फोर्स इनटू डिस्टेंस है, ਇਹਦੇ यूनिट ਕੀ ਆਉਣਗੇ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। फोर्स ਦੇ ਨਿਊਟਨ, डिस्टेंस ਦੇ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲੇ, बाकी आप अगले लेक्चर में करांगे। सो तुसी प्रैक्टिस करेंगे।